بنام جہاندار جہاں آفرین حکیم سخن برزباں آفرین. کہا استاد نے ہم سے یہ باتیں یاد رکھ لینا، کہا استاد نے ہم سے یہ باتیں یاد رکھ لینا، تم اپنی نیکیوں سے یہ زمین آباد رکھ لینا. قوم ہوتا ہے، صاحب تدبیر ہوتا ہے، صاحب ایثار ہوتا ہے، ظلمت شب میں مثل آفتاب ہوتا ہے، اور اس کی ہی علمی تمازت سے گلاب کھلتے ہیں جو دور دور تک دماغوں کو معطر کرتے رہتے ہیں. ایک استاد ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، یہ ہمیں پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اور ایک استاد چاروں اور نور پھیلاتا ہے، اور اسی سے زندگی کے رنگ بو ہے. اور سب سے بڑھ کر اور سب سے برتر ایک بات جو ہے کہ کوئی عقدہ اگر کسی سے نہیں کھل پاتا ہے تو ایک استاد سے ہی امید کی جا سکتی ہے. ایک استاد ہی آخری امید ہوتی ہے کہ اسی سے یہ عقدہ کھل سکتا ہے. وہ جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے ایک استاد ہوتا ہے. اور آج یہی استاد ہم سے بچھڑ رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں. ہروندر سر، گوچی یہ ایک رسمی محفل ہے، ہم ان کو یہاں یاد کریں گے، لیکن کیا کہ یہ کہتے ہیں نا، کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی ہم کو یاد کرے، کیوں کوئی ہم کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. یہ ہر کسی کے لیے ایک نصیحت ہے. آنے والے آتے ہیں اور جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آنے والا کیا لے کر آ رہا ہے اور جانے والا کیا چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایک استاد کے لیے. استاد کا کام اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کلاس روم میں جا کر پڑھائے. He must not only be confined only to his classroom. یہ ضروری ہے. Besides, he is taking his class. استاد کے لیے سب سے بڑی بات ہے how he takes his students. اگر ایک استاد کو زندہ رہنا ہے تو اسے دیکھنا ہے کہ how he takes his students besides taking his class. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، یہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے. اور اسٹوڈنٹ میں جھانکیں کہ اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے. I would like to quote here مہاتما گاندھی. He says by education I mean trying out of the best in child and man, body, mind and spirit. ہے نا؟ یہ استاد کا کام ہوتا ہے. نہ صرف وہ پڑھائیں، اپنے مضمون کو پڑھائیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں سب سے اچھا کیا ہے. اس کو باہر نکالیں، اس کو نکھاریں، اس کو سنواریں. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کریں. کہتے ہیں نا when there is opportunity there is ability. جب موقع فراہم کیا جاتا ہے تب کوئی اپنی صلاحیت کا بھرپور طریقے سے مظاہرہ کر پاتا ہے. یہ ایک استاد کا کام ہے. دوسرا اہم کام کہ استاد پڑھا لکھا ہو. میں کہنا چاہوں گا کہ ہم کن کو بعد میں یاد کرتے ہیں. جانے والے تو جاتے ہیں لیکن یاد کون رہ جاتے ہیں. یاد ان کے انمٹ نقوش کون چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میں ان اساتذہ صاحبان کی بات کر رہا ہوں. استاد کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے. رابندرناتھ ٹیگور ہیز رائٹلی سیڈ کہ استاد جو ہوتا ہے وہ ایک اس چراغ کی مانند ہوتا ہے جو اگر جس میں ہر دن تیل اگر نہ ڈالیں تو وہ اپنے پاس پڑوس کو تابناک نہیں بنا سکتا ہے وہ چراغ. اسی طرح ایک قابل اور ذہین استاد کی یہی مثال ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو. جب وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس نے 10 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، بچہ خام ذہن کا ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے، کسی کتاب کو سمجھ نہیں پاتا ہے. لیکن ایک استاد جب کتاب پڑھتا ہے تو وہ اس کتاب کو، اس مشکل کتاب کو، اس کے خیالات کو، اس میں کیا روایتی ہے، اس میں کیا نیا ہے، اس میں جو ڈکشن ہے وہ کتنا ٹف ہے، اس سب کو آسان بنا کر رکھ دیتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ the citadel of 10 are nearly sit
equal to the poorest thoughtful man. जो थॉटफुल होता है उसने 10 किताबों का मुताला पहले ही किया होता है, वो इनको आसान बना देता है, बच्चों के लिए आसान बना देता है। और तीसरी सबसे अहम और बढ़कर बात जो है, जो इन तमाम चीजों के बारी पड़ती है, वो है किसी उस्ताद का मुखलिस होना, हमदर्द होना, मिलनसार होना और एक मां की तरह बर्ताव करने वाला उस्ताद बनना। और इससे भी बढ़कर कि जब वो एक्सल करे, अपनी क्लास में एक्सल करे, क्लास से बाहर कभी एक्सल करे, तो वो उसको शाबाशी दे, है ना। हम सर्व शिक्षा अभियान में हम पढ़ाते थे, टीचर्स को ट्रेन करते थे, तो स्ट्रेस वाज देयर लेड अपॉन 2 थिंग्स, मदरली ट्रीटमेंट एंड एनकरेजमेंट। मदरली ट्रीटमेंट एंड एनकरेजमेंट, दीज थिंग्स आर वेरी मस्ट। 12 वक्त की तंगदामी है। अब मैं सीधा अपने उस्ताद, अपने गुरु की तरफ आता हूँ। सच कहा, जो भी यहाँ पे आया उन्होंने सच ही कहा। हरविंदर साहब बहुत ही कम गो शख्सियत है, बहुत ही कम गो। बमुश्किल ही उन्होंने, मैंने तकरीबन 10-11 साल यहाँ पे गुजारे हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि 10-20 जुमलों से ज्यादा उन्होंने कुछ फरमाया होगा, 10-20 जुमलों से। लेकिन कहते हैं कि खामोशी भी एक गुफ्तगू होती है, और खामोशी सबसे बड़ी गुफ्तगू होती है। और ये को कि अगर तकल्लुम चांदी है तो सुकूत सोना है। इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। ये मैंने इन्हीं से सीखा है। और इस कौल की बरमला और भरपूर सदाकत हरविंदर सर के तशक्कुस से होती है। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, कभी, हमेशा खामोश रहे हैं, ये हमेशा खामोश रहे हैं। और इनसे मैंने बहसती एक राइटर भी मैं कहूंगा, बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ छोड़कर ये चले गए, बहुत कुछ छोड़कर, यादों के काबू के सब खामोश ज़बान से कहते हैं, खाना खराब, गुजरी बात सदी या पल हो, गुजरी बात है नक्श पर आप, ये रुदाद है अपने सफर की इस आबाद खराबे में, देखो हमने कैसे गुजारी इस आबाद खराबे में। बाहर क्या, ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। नजरों से लोग ओझल होते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो दिल के बहुत ही करीब होते हैं। हम उनसे बातें करते रहते हैं, हम उनसे बातें करते रहते हैं। ये जितने भी, जिन लोगों से मेरा अब तक वास्ता पड़ा है, जो अच्छे लोग हैं, साहिब बसीरत है, खुल्क वाले हैं, अखलाक वाले हैं, बा किरदार लोग हैं, वो हमेशा मेरे करीब रहते हैं। उनके साथ में गुफ्तगू करता रहता हूँ, हमेशा गुफ्तगू करता रहता हूँ। हरविंदर सर कहते हैं ना कि मैं शायर बदनाम, मेरे पास अल्फाज की सौगात के सिवा और क्या हो सकता है। इम्तियाज साहब से गुजारिश है कि मैंने तोहफा तमम के लिए कुछ लिखा है, मुझे उम्मीद है वो कबूल फरमाएंगे। मैं पहले वो पढ़ूंगा, बाद में उनको गिफ्ट करूंगा। साहब प्लीज ये मैंने परसों ही, बाकी इनके जाने से एक बहुत बड़ा खिला पैदा होगा, हम सच में बिखर जाएंगे। इनसे जो चीज हमने सीखी है, उन्होंने मुझे खुसूसन मुझे बहुत कुछ दिया है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ गए, खुसूसन हमारे सरबरा, इस इदारे के सरबरा, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये बात में वो वाली बात मत होगी कि मन तो रहा हाजी बिगो एम तू मेरा हाजी बिगो, मैं उनकी तारीफ इस वक्त नहीं करूँगा। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो वो दिन भी होगा, वो भरपूर दिन होगा उनके लिए। उनके एजाज में हसन अजहर नंगे पाँव चला आएगा। हाँ, मैं कह रहा था हरविंदर सर के बारे में कि शुक्रिया सर।
नज़म बोनवानी याद अब आएंगे अक्सर हरबिंदर सर। अलविदाई नज़म यादी पर हरबिंदर सर। मैंने कोशिश की है। खुशवज़ा इंसान बेहतर हरबिंदर सर, मेरे दिल में कर गए घर हरबिंदर सर। खुशवज़ा इंसान बेहतर हरबिंदर सर, मेरे दिल में कर गए घर हरबिंदर सर। सीधे साधे नर्म जिनकी है तबीयत, सीधे साधे नर्म जिनकी है तबीयत, बात करने का तरीका खूबसूरत। सीधे साधे नर्म जिनकी है तबीयत, बात करने का तरीका खूबसूरत। आपके और मेरे दिल पर हरबिंदर सर। कम सुखन देखा नहीं है मैंने ऐसा, कम सुखन देखा नहीं है मैंने ऐसा, मैं भी बनना चाहता हूँ उनके जैसा। कम सुखन देखा नहीं है मैंने ऐसा, मैं भी बनना चाहता हूँ उनके जैसा। क्या कहूँ है मिसले गौहर हरबिंदर सर। सच यही है वास्ता था मेरा जिनसे, मैंने दानाई बहुत सीखी है उनसे। सच यही है वास्ता था मेरा जिनसे, मैंने दानाई बहुत सीखी है उनसे। इल्म के गहरे समंदर हरबिंदर सर। आ गए थे जब से माइल कर गए वो, आ गए थे जब से माइल कर गए वो, हर किसी इंसान को कायल कर गए वो। जा रहे हैं दिल को छूकर हरबिंदर सर। तो क्यों बहुत तड़पा रहा है आज कोई, क्यों बहुत तड़पा रहा है आज कोई, दूर हमसे जा रहा है आज कोई। क्यों बहुत तड़पा रहा है आज कोई, दूर हमसे जा रहा है आज कोई। याद अब आएंगे अक्सर हरबिंदर सर। खुशवज़ा इंसान बेहतर हरबिंदर सर। मैं मुअज़्ज़ज़ डिग्री जितने भी यहाँ के तशरीफ आवर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरी हौसला अफजाई के लिए अगर यहाँ आए, हरबिंदर सर से गुजारिश है कि वो यहाँ आए और ये तोहफा नाचीज का ये तोहफा कबूल करें। कोऑर्डिनेशन वाकई बेमिसाल। अपने सीनियर पुलिस जो भी हमारे लेक्चरर्स, टीचर्स, सब ने प्यार दिया है। और ये आपका बड़पन है, जो आपने जो ये बोला, ये आपके अल्फाज है, ये आपके तो बोलना है। अच्छे लोग अच्छे अल्फाज ही बोलेंगे, ये तो एक चीज है। ये आपके ही किरदार को पेश करता है कि आप कितने अच्छे अल्फाज बोल सकते हैं, कितने अच्छे हैं आप लोग, जिन्होंने इस छोटी सी नाचीज को भी इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं अपनी सर्विस की बात करूं तो 32 साल से ज़्यादा मैंने सर्विस की है और बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मेरा ताल्लुक। कभी कभार हो सकता है कोई कहीं पर तब्दीली हो, लेकिन अगर मेरी ये ग्रूमिंग हुई है तो अच्छे लोगों की सोबत से ही हुई है। शुरुआत मेरी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हुई है, तो मेरे बड़े भाई परमजीत सर, ये वहाँ पे टीचर थे, इनसे बहुत कुछ सीखा। जब कभी भी मैं कोई गलती करता हूँ तो ये मुझे समझाते हैं। कहने का ये मकसद है कि खुशकिस्मत था मैं कि आप उनकी सोबत से मेरी अच्छी ग्रूमिंग हुई है और ये आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो यही अल्फाज है, यही शब्द है जो मैंने आपके लिए कहने को मुझे बहुत वक्त लग रहा था, लेकिन अब मुझे मेरी जुबान नहीं बोल रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। अब यहाँ जो एज ह्यूमन जो है, हमें आपकी ज़रूरत महसूस होगी ऑक्सीजन की तरह। और जो हमारे यहाँ हर्बल गार्डन भी है और भी बहुत सारे पार्क हैं,
एज बॉटनिस्ट उनको भी ज़रूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह और दूसरे मिनरल्स की तरह। हम आपको ज़रूर मिस करेंगे सर। आपने सही बोला है कि इंसान को अल्लाह ने 2 कान दिए हैं और एक ही ज़ुबान दी है, क्योंकि 2 कान सुनने के लिए इंसान को ज़्यादा सुनना ही है और बोलना कम ही है, इसीलिए एक ही ज़ुबान और 2 कान है। उस पर आप अमल पैरा थे सर, शुक्रिया, थैंक यू सर। उसके बाद प्रिंसिपल सर, जो वर्दी प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बुलाने से पहले डेस पर फॉर वोट ऑफ थैंक्स, बॉटनी वालों की तरफ से एक गिफ्ट। ठीक है सर, वो हम वही करेंगे, आप हम करेंगे। हाँ, और हाँ ज़िम्मन मुझे याद आया, जो हमारे ये सर है उन्होंने वो लिखी थी नज़म भी गज़ल भी, वो अपने ग्रुप में आप शेयर कीजिए, जो आपका अपना ग्रुप है, तो हाँ वो हर एक तक पहुंच जाएगी। तो मैं इससे पहले यहाँ पर बुलाना चाहूँगा प्रिंसिपल सर को, सामने आएंगे और जो हमने यहाँ पर हरविंदर जी के एजाज़ में जो गिफ्ट्स रखे हैं, इनामत ये गिफ्ट्स रखे हैं, तो आप इनको दिल से हमारी तरफ से तोहफतन इनको तस्लीम करेंगे। worthy principal of this institution, I would like to call here, and I would like to call जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर सर है, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, और भी सिकंदर सिंह जी जो है वो भी सामने आएंगे, हरविंदर जी जो है वो सामने आएंगे, तो हमारे गिफ्ट जो है वो उनको एक्सेप्ट करेंगे। This is token of love from the staff members of this veteran institution. We hope that, sir, you may remember us in your prayers